A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So as you already know that we have completed whole syllabus of economics, that is macroeconomics and the Indian economic development. So from the previous few classes we were continuously revise the chapters. We have done numbers of the numerical questions of your income determination and the multiplier as well as the national income. Simultaneously we have also discussing the theoretical part of your economics, that is we have discussed the foreign exchange rate, balance of payment, aggregate demand and aggregate supply and its related aggregates. Next we have discussed the income determination and the multiplier, excess demand, deficient demand, fiscal policies, monetary policies, money, banking, national income and so on. Okay, so after that we have started to solve the previous paper of your whatever the paper is already came in your CBSE examination. We have discussed, first of all we have discussed the CBSE sample paper which is issued by the CBSE in the October 2020. We have already discussed. Next we have discussed the CBSE examination paper of 2020 which is already came in the year 2020. After that we have started the solution of the CBSE examination paper 2019. So we know very well in the 2018 to 19 till the 18-19 batch there were no Indian economic development. Okay, so it was in the class 11th. Okay, so we have discussed in class 12th microeconomics and the macroeconomics. Okay, so in the paper 2019 we only discussed discussed only the macro part. Okay, we will not discuss the micro because it is not worth to discuss in class 12th, so that we discussed only the macroeconomics. Okay, so in the previous classes, I think 2 or 3 classes, we were continuously solving all the questions related to the CBSE examination paper 2019. So first of all we will recapitulate all the questions whatever we have discussed in the previous class. After that we will start to solve the next question. I think so only one question remain here, and after that we will start to set 2 questions. Okay, there are also some questions given in the set 2. So first of all we will discuss the primary deficit in a government budget will be 0 when the fiscal deficit is equal to the interest payment. Next question, in order to encourage investment in the economy the central bank may reduce the cash reserve ratio. Third one is, what do you mean by the direct tax? It is a compulsory payment which is made to the government and the burden of the tax which is not shifted to the another one, like the income tax and the corporation tax. Indirect tax, when we talk about the indirect tax, so indirect tax is a compulsory payment which is made to the government and the burden of this kind of taxes is transferred to the another one. Next question, we have discussed the money multiplier. Okay, so money multiplier, simply it is the fraction of the how much time by which money get multiplied in the process of the credit creation which is done by the commercial bank. Next question that we have discussed, that is question number 17. The change, you have to calculate the change in final income when the MPC and the change in investment is already given. After that we have discussed the impact of the excess demand in under the Keynesian theory in the employment. So there will be no change in the employment. Next question, extent saving, so planned saving, full employment, it is the existing the person who are able and willing to do work at the existing wage rate. So this situation is called the full employment. Autonomous consumption, so when the income level is already 0, the consumption can't be 0. Okay, so it is the independent level of income. After that we have discussed the revenue receipt and the capital receipt. Okay, फिर क्वेश्चन नंबर 20 हमने डिस्कस किया था, हायर जीडीपी means greater per capita availability of the goods and services in an economy. So this statement can't be say always true. Okay, इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था बिकॉज ये स्टेटमेंट तभी सही होगा जब जहाँ पे हम लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, इनकम की, वेल्थ की, डिफरेंट रिसोर्सेज है, बट इन रियलिटी ये सारी कंडीशंस होते नहीं हैं.
और डिफरेंट एक्सटर्नलिटीज़ भी होते हैं जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. आफ्टर दैट इन दी और वन क्वेश्चन इज गिवन रियल जीडीपी एंड द नॉमिनल जीडीपी. तो नॉमिनल जीडीपी हम कह सकते हैं, यस, नॉमिनल जीडीपी को हम लोग कह देंगे कि करंट प्राइस पे हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं, और रियल जीडीपी को हम लोग कांस्टेंट प्राइस पे करते हैं. फिर है क्वेश्चन डिस्टिंग्विश बिटवीन द क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव. तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की जब हम बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव क्या होता है कि मनी सप्लाई को क्वांटिटी के टर्म्स में मेजर करता है. वही अगर क्वालिटेटिव की बात करते हैं तो ये मनी सप्लाई को क्वालिटी के बेसिस पे क्या करता है, मेजर करता है. तो क्वांटिटेटिव में हम लोग क्या क्या पढ़ते थे, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन. नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं क्वालिटेटिव में मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉडल सुएशन and the selective credit control. Okay, after that question number 22, define trade surplus and trade deficit. So trade surplus is simply when the export of the goods and services becomes more than the import of the goods and services. This situation is called the trade surplus. Trade deficit means when the import of the goods and services becomes more than the export of the goods and services. When the outflow of the foreign exchange becomes more than the inflow of the foreign exchange, this situation is your trade deficit. Next question is discuss briefly the concept of the managed floating. So managed floating exchange rate, simply it is the combination of the fixed exchange rate and the flexible exchange rate. It is also called the dirty floating and the hybrid system of the foreign exchange. Next question is question number 23. So you have to tell here adjustment mechanism. So in the case of adjustment mechanism, the statement is given here when the AD is less than the AS. Okay, अभी जब AD क्या होगा, लेस होगा AS से, तो क्या सिचुएशन होगी, उसी में दे रहा है एक्सेंट इन्वेस्टमेंट आर ग्रेटर देन एक्सेंट सेविंग. जब एक्सेंट इन्वेस्टमेंट मतलब जो आपका प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, ग्रेटर देन दी प्लान्ड सेविंग. इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द सेविंग, तो मतलब क्या हो गया, AD इज ग्रेटर देन द AS. तो ये आपको एडजस्टमेंट इसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर देना है. जो भी करेक्शन हो गया, इसका कॉज मीनिंग हो गया, इसका कॉज हो गया, फिर इसका करेक्शन हम कैसे करेंगे. ठीक है, फिर आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 24 के साथ डिस्कस करेंगे हम लोग, दैट इज डिफाइन द फॉलोइंग. आपको क्वेश्चन नंबर 24 ये लास्ट है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 डिफाइन द फॉलोइंग. तो हम लोग ने वैल्यू एडिशन डिफाइन कर लिया था. नेक्स्ट का क्या था आपका, जीडीपी भी डिफाइन कर लिया था. 2 और लेफ्ट थे आपके, फ्लो वेरिएबल्स एंड द इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड द एंटरप्रेन्योरशिप. सो टिल हियर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास. So in today's class, first of all, we discuss 2 concepts and after that we will do the numerical questions. Okay, so let's get started. Okay, so question number 24. 24 is of 6 marks. A और B हमने डिस्कस कर लिया था. C, that is flow variable, and D is income from property and the entrepreneurship. Income from property and entrepreneurship. Okay, so firstly we will discuss with the flow variable. Flow variable आपको याद होगा 2 टाइप के वेरिएबल होते हैं, स्टॉक वेरिएबल एंड दी फ्लो वेरिएबल. ठीक है, तो फ्लो वेरिएबल हम लोग किस टाइम पे मेजर करते हैं, एट द टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम. मतलब किसी पीरियड ऑफ टाइम पे कितना ज़्यादा आपके पास स्टॉक है या कोई भी गुड्स प्रेजेंट है, एट दैट सिचुएशन हम उसको फ्लो वेरिएबल कहते हैं. सो इट इज़ अ डायनेमिक इन नेचर. ये क्या होता है, डायनेमिक होता है. ये नहीं हम कह सकते हैं रिजिड है, ये डायनेमिक है, मीन्स चेंज होता रहता है. एंड इट फॉर एग्जाम्पल सेविंग हो गया, इसको हम लोग जो मेजर करते हैं वो पर डे, पर आवर, पर मिनट हम लोग सेकेंड करते हैं कि इतना कब फ्लो है. जैसे रिवर इन अ टैंक अगर हम लोग बोलते हैं कि वाटर इन अ टैंक बात करते हैं हम लोग, तो टैंक में पानी कितना है, तो ये स्टॉक हो गया कि हमारा स्टॉक है. अब हम लोग बात कर रहे हैं कि वाटर इन अ रिवर, पानी जो है वो रिवर में है, तो वो क्या है, फ्लो है, कि हर एक टाइम वो पानी क्या हो रहा है, उसका जो क्वांटिटी है वो चेंज हो रहा है.
सो दिस वन इज योर फ्लो वेरिएबल. नेक्स्ट है आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड द entrepreneurship. So it refers to the income received in the form of factor income from the labor services on capital investment abroad. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी इनकम रिसीव्ड हो रही है इसको हम लोग फैक्टर इनकम की तरह लेते हैं. ठीक है, तो जो भी इनकम रिसीव्ड हो रही है कहाँ से, इनकम फ्रॉम दी लेबर सर्विसेज, जो भी लेबर सर्विस कर रहे हैं इनकम मिल रही है प्रॉपर्टी एंड द इंटरप्रेन्योर से ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड अब्रॉड. जो कैपिटल क्या है, जो भी फंड है वो अब्रॉड में इन्वेस्ट हुआ है. रेंट रिसीव्ड बाय एन इंडियन फ्रॉम इट्स प्रॉपर्टी अब्रॉड. ठीक है, रेंट रिसीव्ड हो रहा है इंडियन का, उसकी प्रॉपर्टी कहाँ पे, अब्रॉड में. तो इनकम कहाँ से मिली, प्रॉपर्टी एंड इंटरप्रेन्योर से, जिसका जो भी डिफरेंट गुड्स लेबर सर्विसेज है वो कहाँ से मिल रहा है, इनकम कहाँ से जनरेट हो रही है, फ्रॉम दी अब्रॉड से. तो उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम दी प्रॉपर्टी एंड द एंटरप्रेन्योरशिप. नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 में और दे के रखा है, दैट इज न्यूमेरिकल क्वेश्चन. ठीक है, ये क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में, मतलब कि अगर हम लोग बात करते हैं ऑफलाइन क्लास में, तो ये ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस कर लिया है. ठीक है, तो फिर एक बार देखते हैं क्या कह रहा है. गिवन द फॉलोइंग डेटा फाइंड द वैल्यूज ऑफ द GDCF. आपको यू हैव टू कैलकुलेट हियर ग्रॉस डोमेस्टिक capital formation, and next one is operating surplus. ओके, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, दैट इज NI दिया है, नेशनल इनकम 22,100 रुपीज इन करोड़ में है. वेजेस एंड सैलरीज इट इज 12,000. प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है 7,200. NIT इज 700. GDCF you have to calculate. Depreciation is 500. Next one is GFCE. Government final consumption expenditure is given 6,100. Mixed income दिया आपका MI 4,800. आपका नेट एक्सपोर्ट, इट इज विजिबल और नॉट, यस, नेट एक्सपोर्ट दिया है, नेट एक्सपोर्ट 3,400. रेंट 1,200. एंड NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज -50. राइट, इतनी आपको सारी इंफॉर्मेशन क्या है, गिवन है. सो यू हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. ओके, तो आपको याद है कि GDCF हम लोग किसमें कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड में. ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, GDP MP. तो क्या फॉर्मूला होता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस GDCF यू हैव टू कैलकुलेट हियर. एंड नेक्स्ट वन इज योर नेट एक्सपोर्ट. ओके, तो GDCF यहाँ पे कितना हो जाएगा, GDCF is where GFCE is 6,100 plus PFCE 7,200 प्लस आपको GDCF दिया हुआ है प्लस नेट एक्सपोर्ट इज 3,400. राइट, सो GDP MP आ गया, इसको सम कर लेते हैं 6,100 6,100
plus 7,200, 3,400, 16,700 प्लस GDCF तो आपके पास है ही। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे NNP एट FC। NNP एट FC आपके पास दिया है नेशनल इनकम, ठीक है। और इसका क्या होगा GDP-MP प्लस अगर हम लोग को नेट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, नेट नेशनल निकालना है तो माइनस डेप्रीसिएशन प्लस NFIA, FC निकालना है तो माइनस NIT, ठीक। NNP एट FC की वैल्यू दी है 22,100 इज इक्वल टू GDP-MP दिया आपका 16,700 प्लस साथ में GDCF भी है, माइनस डेप्रिसिएशन की वैल्यू इज -500, NFIA दिया है माइनस, प्लस है तो माइनस दिया है -150, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 700। प्लस GDCF, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं माइनस प्लस 1200 माइनस 150, 1350, 16,700 माइनस 1350, 14,350 माइनस प्लस GDCF, so 22,100, 14,350, ये हो गया आपका 6750, यस आ गया आपका, दैट इज 6750। So we will write here that is GDCF is equal to rupees 6750, ठीक है। एक हमारा इसके थ्रू एक आंसर कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट दी ऑपरेटिंग सरप्लस। हमें यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं करना था यहाँ पे हमें। बेसिकली देखिए जो भी फॉर्मूला भी दे रखा है, जो नहीं है उसको छोड़ते चलिए और वहां बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको उससे वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस तो हम लोग इससे क्या कैलकुलेट करते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस हम लोग किसमें कैलकुलेट करते हैं, इनकम मेथड में, ओके। सो NDP एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला हो गया, तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग सीधे निकाल लें, हम लोग सीधे भी तो निकाल सकते हैं ना। जैसे NNP एट फैक्टर कॉस्ट है, इधर लिख दे NDP एट फैक्टर कॉस्ट, नेशनल निकालना है तो प्लस NFIA हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, NNP एट फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू दी है 22,100, NDP एट फैक्टर कॉस्ट में क्या क्या दिया है आपका, वेजेस एंड सैलरीज 12,000, मिक्स्ड इनकम 4,800, रेंट 1,200, ऑपरेटिंग सरप्लस दिया नहीं है, ऑपरेटिंग सरप्लस, ओके। वेट, अब यहां पे देखिए यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर NDP NNP एट फैक्टर कॉस्ट दिया है और NDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस NFIA, हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी पता है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट की, तो हम लोग 22,100, NDP एट फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू हमें पता नहीं है,
प्लस NFIA की वैल्यू पता है, दैट इज -50। ठीक है, तो NDP एट फैक्टर कॉस्ट की यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या होगा, 22,100 में हम लोग क्या कर देंगे, $22,100, ये हो गया प्लस प्लस माइनस माइनस इधर आएगा तो प्लस, ये हो गया आपका 22,250 आपका, ये आपका निकल गया है NDP एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, NDP एट फैक्टर कॉस्ट निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, NDP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है आपका मिक्स, सबसे पहले COE, COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, NDP एट फैक्टर कॉस्ट पता चल गया 22,250। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आपको क्या दिया है, 12,000 दिया है। ऑपरेटिंग सरप्लस यू हैव टू कैलकुलेट एंड द मिक्स्ड इनकम इज गिवन। ओके, तो मिक्स्ड इनकम आपका कितना दिया हुआ है, 4,800। ओके, तो 22,250, 12,000 प्लस 400 कितना हो गया, 16,800 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस इज इट विजिबल और नॉट, यस, ऑपरेटिंग सरप्लस हम लोग ऊपर लिख लेते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस कितना हो गया, ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल टू 22,250 माइनस 16,800। ऑपरेटिंग सरप्लस इसको हम लोग माइनस कर देते हैं, 22,250 माइनस 16,800। ओके, सो ये आपका कितना आ गया, 5450। ठीक, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर, यू हैव टू ऑलवेज एंड ऑलवेज शो योर रुपीज एंड करोड़। ये मैं आप लोग को रोज क्लास में भी, इवन इसमें भी, कि करोड़, क्योंकि अब ये 5, अगर हम लोग नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं पूरी इकॉनमी में, तो बस हम लोग ये लिखते हैं 5450, तो ये समझ में आ रहा है कि इकॉनमी में बस 5,000 का ही ऑपरेटिंग सरप्लस हो रहा है। सो यू हैव टू मेंशन हियर करोड़, ओके, और रुपीज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये करके आपका क्या होगा, पूरा आंसर सही होगा। और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसको करने के बाद यू गेट दी टोटल 6 मार्क्स। और इतना किसी का नहीं है कि कोई इसमें से आपका नंबर इसमें से कट कर सकता है। ठीक है, तो सारे स्टेप्स को फॉलो करिए, स्टेप्स को फॉलो करते करते क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, यहां तक हम लोग ने देख लिया कि जो पेपर है, मतलब CBSE 2019 का पेपर डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब सेट 2 में भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि ये भी क्वेश्चन नंबर 17 है, सेट 2 में 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, 3 मार्क्स। ओके, 3 मार्क्स। ये कह रहा है कि एस्टिमेट द चेंज इन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इफ MPS इज 0.10 एंड चेंज इन फाइनल इनकम इज 15,000। मतलब आपको क्वेश्चन में दे रहा है MPS दे रहा है 0.10 एंड फाइनल इनकम इज ₹50,000। फाइनल इनकम 15,000 दे रही है। $15,000 करोड़। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब डेल्टा आई यू हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, आपको पता है सबसे पहला कि यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, MPS दिया है, हम लोग यहाँ पे K की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो K इक्वल टू क्या होता है, K इज मल्टीप्लायर, सो K इक्वल टू 1/MPS। ठीक, क्या हो गया, 1/MPS 0.10 दिया है। ठीक है, 2 0 लगाएंगे तो कितना आ गया आपका, K इक्वल टू 10। ठीक, K इक्वल टू 10 आ गया। 10 K इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I। ठीक,
डेल्टा वाई के यहाँ पे क्या है, के की वैल्यू उन्होंने फाइंड आउट किया 10, डेल्टा वाई सॉरी इट इज वाई, डेल्टा वाई इज 15,000 अपॉन डेल्टा आई इज यू हैव टू कैलकुलेट, राइट। तो आपका यहाँ पे क्या आ गया, यस। तो हमें पता ही, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो 10 डेल्टा आई 15,000, then delta I equal to 15,000 upon 10, so delta I equal to rupees 1,500 crores। आपको जब देखिए, सबसे बड़ी बात यही है, इस क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है, जैसे ही आपका मल्टीप्लायर वैल्यू कैलकुलेट हो गया ना, आप उसके बाद डायरेक्टली इस पे क्या कर सकते हो, मल्टीप्लायर कैलकुलेट हो गया तो आप अगर ये 10 टाइम्स हो रहा है, मल्टीप्लायर 10 टाइम्स हो रहा है, तो समझ लीजिए वाई अगर इसका 10 टाइम्स हुआ है तो हम उसका कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा जो इनकम 10 टाइम्स इंक्रीज करिए। तो ये अगर 15,000 है तो अगर हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे तो उतना ही हम लोग ने क्या किया था, इन्वेस्टमेंट किया था, इसलिए इनकम कितनी जनरेट हुई, 15,000 जनरेट हुई, ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कुछ होते नहीं है, बस उसमें थोड़ा सा ट्रिकी होता है, आप एकदम सिंपली भी इसको कर सकते हो, ठीक है। फिर इसमें क्वेश्चन है डिस्कस ब्रीफली दी फॉलोइंग फंक्शंस एज ऑफ अ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का आपको फंक्शंस को बताना है। तो पहला है बैंकर्स बैंक, पता ही आपको कि जो भी सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री की होती है वो क्या होती है, बैंकर्स, बैंकर की भी बैंक होती है, क्योंकि वो सारे क्लियरिंग फंक्शंस जो होते हैं बिटवीन द बैंक्स वो सारे काम करती है। CRR SLR से रिलेटेड जो भी वैरिंग रिजर्व रेशियो उसको भी डिसाइड करती है। तो ये सारे क्या, बैंकर के भी बैंक हो गए। नेक्स्ट है लेंडर टू दी लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। इसका मतलब बेसिकली यही होता है कि जब भी लेंडर लेंड करती है लास्ट रिजॉर्ट, मतलब जब कभी भी कमर्शियल बैंक और भी डिफरेंट गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि वो फंड को कहाँ से रेज करे, तो एक लास्ट ऑप्शन सबके पास क्या होता है, दैट इज सेंट्रल बैंक, और इंडिया में RBI। तो ये सारे फंक्शनिंग कौन करता है, लास्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करती है, इसलिए उसको बोलते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। मतलब जब कहीं पे भी ऑप्शन नहीं बच रहा है किसी कमर्शियल बैंक के पास, गवर्नमेंट के पास नहीं, कि वो अपने सिक्योरिटीज को या डिफरेंट शेयर्स को, PSUs को सोल्ड आउट करके इनकम था जनरेट कर ले, कोई ऑप्शन नहीं बचता है, देन वो किसके पास जाती है, सेंट्रल बैंक के पास जाती है। फिर उनसे कहती है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग करो, न्यू करेंसी इसको क्या करो, इशू करो, ठीक है। फिर इसमें यही है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन दी एप्रिसिएशन ऑफ दी होम करेंसी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ दी होम करेंसी। मुझे नहीं लगता है इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये देखिए इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन हम लोग कितने टाइम्स पढ़ चुके हैं। डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन करेंसी। सो जब पहले आपका क्या था, $1 इक्वल टू 70 था, 70 रुपीज था, अब $1 इक्वल टू 80 रुपीज हो गया, ठीक है। एक्सचेंज रेट हाई हो गया। एप्रिसिएशन में बोलते हैं व्हेन दी राइज कर जाता है, ठीक है, उसमें क्या केस हो जाता है कि एक्सचेंज रेट फॉल कर जाता है। सो $1 पहले अगर 70 रुपीज था, अब $1 इक्वल टू 60 रुपीज। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, यही दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। फिर व्हाट इज मेंट बाय द करंट अकाउंट सरप्लस। करंट अकाउंट सरप्लस क्या होता है, पता ही है आपको। करंट अकाउंट सरप्लस की बात हम जब करते हैं तो क्रेडिट साइड जो भी है वो क्या हो जाता है, डेबिट साइड से ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है स्टेट एनी वन सोर्स ऑफ द सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी ऑफ ए कंट्री। तो जब भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, वैसे ठीक है, तो वो क्या हो गया, सप्लाई होती है ना फॉरेन करेंसी की, तो जब भी एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग। फिर एक क्वेश्चन सेट 3 में डिफरेंट दिया है, एस्टिमेट द चेंज इन द फाइनल इनकम इफ MPS इज गिवन 0.75 एंड चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज ₹2000। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। MPC इज 0.75, राइट, एंड डेल्टा I is given ₹2000 करोड़। ओके, ये आपके पास ऑलरेडी मेंशन है, आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा वाई। चेंज इन इनकम यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। चेंज इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे,
वही सेम प्रोसेस है। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक ऑप्शन आपके पास ये होता है, यहाँ पे एमपीएस की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो एमपीएस क्या होगा, 1 माइनस एमपीसी, सो दैट इज 1 माइनस 0.75, 0.25। सो के इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस, सो 1 अपॉन 0.25, ये 0, सो के इक्वल टू 4 आ गया। देन अब क्या करेंगे, के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। सो के की वैल्यू हो गई 4, डेल्टा वाई की वैल्यू यू हैव टू कैलकुलेट, डेल्टा आई की वैल्यू इज ₹2000 crores. So delta y equal to 2 4 जा 8, ₹8,000 crores. Okay. So we have discussed till here in today's class. So in the next class we will continue to solve the another questions also. Okay, thank you.